Hello everyone. So today in this video we will be doing a past year question paper of business research. So without any wastage, let's start. The very first question is we are asked to develop a hierarchy of questions with at least one question at each level for addressing the following management issues. So it has four parts. Let's see the first part that asks us marketing manager of a software company exploring strategies to penetrate the healthcare sector. So for this, the management question can be how can the company effectively enter and grow in healthcare technology market? Research question can be what are the key needs, adoption barriers and preferences of healthcare institution regarding software solution? Investigative question can be what types of software solutions are most demanded by hospitals and clinics? What concern do healthcare providers have regarding software integration, data security, and usability? Who are the major competitors in the healthcare IT market? And the measurement question can be which of the following software solutions would your institution consider adopting? Rate your level of concern regarding data privacy in software solutions. So basically, there are four types of questions that can be asked. The first is management question, research question, investigative question, and measurement question. So for the rest of the part, we have to draft questions on these four categories. So the second part of this question is CFO evaluating the financial impact of remote work on company's expense. So again, the management question can be what is the overall financial effect of remote work on the company's operating cost? Research question can be how has remote work influenced cost such as office rent, utilities, employees' productivity expense, and technology infrastructure? Investigative questions can be how have office overhead changed after shifting to remote work? What additional technology costs have been incurred? Measurement question can be please state the percentage reduction in office space uses after remote work implementation and what is the average annual expenditure per employee on remote work technology. The third part of the question is insurance company considering personalized policy based on AI prediction. So here the management question can be should the company introduce AI based personalized insurance policies and what risk and benefit are associated with it? Research question can be how willing are customer to adopt AI driven personalized policy and what factors influence their acceptance? Investigative question can be what demographic group shows the highest acceptance of AI based policies and what concerns do customer have regarding privacy, fairness and premium calculations? Measurement question can be how do you consider purchasing a personalized AI based insurance policy and rate your concern about sharing personal data for premium calculation? The fourth part of this question is heads of operations at automotive firm considering shifting production to electric vehicles, that is EVs. Here the management question can be is it feasible and profitable to shift part of company's automobile production to electric vehicles? Research question can be what are the market demand, production cost implications, and over operational challenges associated with EV manufacturing? Investigative question here can be what is the current and future demand for electric vehicles in target market and what changes in supply chain, labor skills and equipment are required. Here the measurement question can be what is the estimated increase in production cost per vehicle if shifted to EVs and what percentage of your customers are likely to shift to electric vehicles in the next 3 years. So this was about the first question. Moving to the second question, that is a researcher wishes to examine the effect of noise levels on the concentration ability of student. What type of data would you collect and identify the concept, construct, variables and hypothesis for this research? And what type of research shall be carried in this case? Explain various type of researches with suitable example. So we will answer this question one by one. The first part is what type of data would you collect? So the study examines the effect of noise, that is independent variable, and concentration, that is dependent variable. Therefore, the data that we should collect should be primary data collected directly from the students through experiment, test and observations. Quantitative data, because both noise levels and concentration scores need to be measured numerically. Noise level can be measured in decibels and concentration ability measure using test scores, reaction time and number of errors. Thus, this is the primary experimental quantitative data. Now we have to identify the concept, construct, variable and hypothesis. The core concept here is environmental factors affecting student performance. Construct are broad abstract ideas that cannot be measured directly. So here it's the noise level, environmental distraction and concentration ability, that is cognitive performance.
Variables here are dependent and independent variable. Independent is the noise and dependent is concentration ability. Now control variables here are time of day, type of task, classroom environment, age group of student that we can control. Now here, if we are setting the hypothesis, then the null hypothesis can be noise level has no significant effect on concentration ability of student. On the other hand, alternative hypothesis can be higher noise levels effectively reduce the concentration of concentration ability of student. Now the third part, what type of research shall be carried out? Because the researcher will manipulate the independent variable, that is noise, and measure its effect on concentration. This involves creating controlled noise conditions, measuring concentration performance, and comparing results across groups. So the suitable type is true experimental or laboratory experimental research. In the next part of this question, we are asked to explain various type of researches with suitable example. So research को हम basically कैटेगराइज करते हैं कुछ बेस्ड पे, जैसे कि पर्पस के बेस पे अगर हम कैटेगराइज करें तो आपके रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो सकते हैं, एनालिटिकल रिसर्च हो सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव इसका एग्जांपल समझते हैं कि स्टडिंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर यूपीआई पेमेंट्स, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया. एनालिटिकल्स जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उनके रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं, लाइक एनालाइजिंग पास्ट स्टॉक ट्रेंड्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स. एक्सप्लोरेटरी होता है जब प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, तब हम इस रिसर्च को अप्लाई करते हैं, लाइक एक्सप्लोरिंग वाई स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन एजुकेशन. बेस्ड ऑन मेथड और अप्रोच आपके अगेन दो टाइप के रिसर्च होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव आपके नॉन न्यूमेरिक होते हैं जो कि बेसिकली फोकस होते हैं एटीट्यूड्स और बिहेवियर पे. इनके मेथड्स आप इंटरव्यू और फोकस ग्रुप्स हो सकते हैं. एग्जाम्पल, अगर किसी भी एम्प्लॉय को समझना है इमोशंस ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, मतलब स्टडी ऑन अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय इमोशंस ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आपके होते हैं जो कि न्यूमेरिक्स यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, जैसे सर्विंग 500 कस्टमर टू स्टडी ब्रांड लॉयल्टी. बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगेन ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स जहाँ पे मैनिपुलेट करते वेरिएबल्स टू डिटरमाइन कैजुअलिटी, और नॉन एक्सपेरिमेंटल जहाँ पे वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाता है, जैसे कि स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड इनकम. टाइम डायमेंशन के बेस पे भी आपके दो कैटेगरीज थे, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. क्रॉस सेक्शनल होता है जहाँ पे डेटा कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम, जैसे कि सिंगल डे सर्वे ऑफ पैसेंजर सेटिस्फेक्शन इन दिल्ली मेट्रो. लॉन्गिट्यूडनल होता है कि डेटा कलेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक ट्रैकिंग द सेम एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर 3 years. बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट भी आपके दो टाइप होते हैं, फील्ड रिसर्च एंड लेबोरेटरी रिसर्च. फील्ड रिसर्च आपका रियल लाइफ एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि स्टडिंग कस्टमर बिहेवियर इन रिटेल स्टोर. लेबोरेटरी आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है, जैसे टेस्टिंग नॉइज इफेक्ट ऑन कंसंट्रेशन इन अ साउंड कंट्रोल रूम. बेस्ड ऑन लॉजिक भी आपके दो टाइप के रिसर्च होते हैं, डिडक्टिव रिसर्च एंड इंडक्टिव रिसर्च. डिडक्टिव जो कि जर्नल थ्योरी से स्पेसिफिक थ्योरीज तक जाते हैं, जैसे कि टेस्टिंग थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर ऑन कंज्यूमर बाइंग. इंडक्टिव आपके स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं, ऑब्जर्विंग सोशल मीडिया बिहेवियर टू बिल्ड अ न्यू मार्केटिंग मॉडल. बेस्ड ऑन डेटा सोर्स आपके दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी रिसर्च एंड सेकेंडरी रिसर्च. प्राइमरी आपके जो कि सर्वेज कंडक्ट करके इंटरव्यूज़ लेके होते हैं. सेकेंडरी डेटा जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च होते हैं, कोई भी रिपोर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होते हैं, उनको कंसिडर करते हैं. So this was your question number 2. Moving to the third question, that is, if you're conducting a face-to-face interview survey with 500 customers in a supermarket chain to evaluate their in-store shopping experience, which sampling method would you use, and explain the difference between probability and non-probability sampling and their suitability for your research. So अगर हमें ज़रूरत है 500 कस्टमर अक्रॉस सुपरमार्केट उनके इंटरव्यू लेने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है टू इवेलुएट इन स्टोर शॉपिंग एक्सपीरियंस. सो द सैम्पल मस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टोर्स कस्टमर पॉपुलेशन. तो यहाँ पे हम सैम्पलिंग मेथड्स जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगर देखा जाए तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हो सकता है, क्योंकि हाईली सूटेबल है सुपरमार्केट एनवायरनमेंट में. आप सेलेक्ट एवरी nth टर्म ऑफ कस्टमर एंटरिंग और एग्जिस्टिंग, जैसे कि अगर 2000 कस्टमर्स अप्रॉक्स विजिट करते हैं पर डे और यू वांट टू इंटरव्यू 200 फ्रॉम दैट स्टोर, तो मान लो हमने हर 10वें कस्टमर का इंटरव्यू लिया, तो इस सेलेक्टिंग द nth
नंबर ऑफ कस्टमर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। सो ये सूटेबल क्यों होता है? क्योंकि बहुत ईजी होता है इम्प्लीमेंट करना, रिड्यूस करता है इंटरव्यूअर का बायस और इंश्योर करता है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्डेंट थ्रू आउट द डे। देन अगेन अगर हम सिस्टम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सेकेंड टाइप देखा जाए तो सेट्राफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सुपरमार्केट के चेन्स आपके डिफरेंट स्टोर साइज हो सकते हैं, लोकेशन हो सकते हैं, कस्टमर कैटेगरीज भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं कस्टमर्स को या फिर स्टोर्स को इनटू अ स्टेट्रा लाइक रूरल वर्सेस अर्बन, लार्ज वर्सेस स्मॉल स्टोर्स, और फिर रैंडमली सेलेक्ट करते हैं कस्टमर्स को फ्रॉम ईच स्पेक्ट्रम। सुटेबल क्यों हो सकता है? क्योंकि ये इंश्योर करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स कस्टमर ग्रुप और रिड्यूस सैम्पलिंग एरर्स, और सूटेबल होता है जब पॉपुलेशन आपका काफ़ी हेट्रोजीनियस हो। क्लस्टर सैम्पलिंग होता है जो कि स्टोर लेवल क्लस्टरिंग होता है। इट मीन्स इफ द सुपर मार्केट हैज़ मैनी लोकेशन, क्लस्टर सैम्पलिंग हेल्प्स रिड्यूस कॉस्ट। सो इस मेथड में क्या करना होता है कि ट्रीट ईच स्टोर एज अ क्लस्टर एंड रेंडमली सेलेक्ट अ सेट ऑफ स्टोर्स, देन सैम्पल कस्टमर्स विद दो स्टोर्स यूजिंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सूटेबल क्यों होता है? क्योंकि इकोनॉमिकल होता है, प्रैक्टिकल ये होता है जब लार्ज जोग्राफिकल स्प्रेड हो, और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये हमारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स थे जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में अगर हम देखें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर्स हु आर वेरी इजीली एक्सेसिबल लाइक नियर द एंट्रेंस एग्जिस्ट और बिलिंग काउंटर्स। ये क्विक और कॉस्ट एफिशिएंट होता है। सूटेबल इफ टाइम एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिमिटेशंस क्योंकि फुली रिप्रेजेंटेटिव नहीं प्रोवाइड करता है और काफ़ी ज़्यादा हायर बायस हो सकता है यहाँ पे। कोटा सैम्पलिंग भी हम ले सकते हैं कि असाइनिंग फिक्स्ड कोटास बेस्ड ऑन एज, जेंडर एंड स्टोर टाइप, द इंटरव्यू कस्टमर्स हु मीट द कोटा। तो यहाँ पे ये इंश्योर करता है, सूटेबल क्यों होगा? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि काफ़ी लार्ज ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कस्टमर्स मिल सके हमें, एंड यूजफुल व्हेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ नॉट विजिबल इनसाइड बिजी स्टोर्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है? एवरी यूनिट इन अ पॉपुलेशन हैज़ अ नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ये होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेट्राफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फीचर्स रिप्रेजेंटेटिव, लो बायस एंड सूटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड जर्नलाइज। अगेन इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं कि काफ़ी एक्यूरेट होता है, रिलायबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, सैम्पलिंग एरर कैन बी मेजर्ड हियर एंड रिजल्ट्स कैन बी जर्नलाइज टू द एंटायर पॉपुलेशन। डिसएडवांटेज काफ़ी कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, एंड रिक्वायर्स अ कंप्लीट पॉपुलेशन लिस्ट एंड समटाइम्स इम्प्रैक्टिकल इन फील्ड सेटिंग्स। अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होते हैं कि एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन रिसर्चर्स जजमेंट या फिर एक्सेसिबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज अननोन। वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इज जीरो हो सकता है, यहाँ पे अननोन है क्योंकि रिसर्चर अपने जजमेंट या एक्सेसिबिलिटी पे सेलेक्ट करता है। एग्जाम्पल्स आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड जजमेंट सैम्पलिंग। फीचर्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो सकता है, ये फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी ज़्यादा, एंड यूजफुल फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि ये काफ़ी इकोनॉमिकल होगा, ईजी टू इम्प्लीमेंट इन नेचुरल सेटिंग्स एंड यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन लिस्ट इज अनअवेलेबल। डिसएडवांटेज क्योंकि इसमें बायसनेस बहुत ज़्यादा होगी एंड रिजल्ट्स कैन नॉट बी जर्नलाइज्ड एंड नॉट सूटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल इंटरफेस। अब यहाँ पे हमें रीज़न देना है फॉर सूटेबिलिटी हियर। तो व्हेन टू यूज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यहाँ पे अगर रिसर्चर को चाहिए कि एक्यूरेट और अनबायस्ड मेजरमेंट हो कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस का, तो वो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का यूज़ करे। स्टैटिस्टिकल जर्नलाइजेशन ऑफ एंटायर सुपरमार्केट चेन एंड रिलायबल कंक्लूजन फॉर मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिकमेंड करेंगे इस केस में, तो सिस्टमैटिक या सेट्राफाइड सैम्पलिंग रिकमेंड करेंगे। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं जब स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड हो, स्टाफ अवेलेबिलिटी लिमिटेड हो, हमें फीडबैक बहुत जल्दी चाहिए और बजट लो हो, तो नॉन प्रोबेबिलिटी में हम कन्वीनियंस और कोटा सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम सैम्पलिंग स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे तो कॉम्बिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आप कुछ फ्यू सुपर मार्केट से क्लस्टर सैम्पलिंग कर लीजिए और विद इन ईच स्टोर सेलेक्ट कस्टमर यूजिंग सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। और थर्ड स्टेप में इफ सर्टेन कस्टमर सेगमेंट आर अंडर रिप्रेजेंटेड, यूज़ कोटा सैम्पलिंग टू फिल द गैप्स। दिस ensures both representativeness and practical feasibility. So moving to the fifth question, that is, for each of the following scenarios, specify the most appropriate statistical test. So the first, it has 7 parts. So the first part is difference in anxiety between mediator and non-mediator. यहाँ पे independent sample t test लगा सकते हैं हम, और यहाँ पे हमारे assumption से alternative क्या होगा, क्योंकि assume roughly normal score होगा और equal variances होंगे. एसोसिएशन बिटवीन पेट ओनरशिप एंड लेवल ऑफ रिपोर्टेड हैप्पीनेस, यहाँ पे इफ़ हैप्पीनेस इज
कैटेगोरियल लाइक लो, मीडियम और हाई, तो काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ हैप्पीनेस इज मेजर्ड एट कंटिन्यूस और इंटरवल स्कोर, तो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं हम। रीजंस क्या है? क्योंकि काई स्क्वायर टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरियल वेरिएबल्स, और टी टेस्ट कंपेयर करता है मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का, कंपेयरिंग मीन फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ कार्स फ्रॉम टू मैन्युफैक्चरर्स। तो टेस्ट हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं और कॉन्टिन्यूस आउटकम है, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी। रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स अटेंडेंस रेट एंड फाइनल्स एग्जाम स्कोर, यहाँ पे हम पियर्सन कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोथ वेरिएबल यहाँ पे कॉन्टिन्यूस होते हैं, और कोरिलेशन मेजर्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन, एंड रिग्रेशन टेस्ट प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप। डज सैम्पल ब्लड टाइप डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हम टेस्ट यूज़ करते हैं काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टू टेस्ट, एंड रीज़न क्या है यहाँ पे? कंपेयर्स ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस कैटेगरीज ए बी ओ विद एक्सपेक्टेड प्रपोर्शंस। चेंज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिफोर एंड आफ्टर अ सर्विस इंप्रूवमेंट, यहाँ पे पेयर्ड टी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेम कस्टमर को 2 बार मेजर कर रहे हो, बिफोर और आफ्टर, तो पेयर्ड कॉन्टिन्यूस डेटा ये है। एंड डू proportions ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स डिफर बिटवीन बैचेस ऑफ टू मशीन, तो यहाँ पे 2 पोर्शंस है, तो जी टेस्ट यूज़ करते हो, और काई स्क्वायर टेस्ट ऑन अ टेबल 2x2 टेबल। रीजंस, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं 2 प्रोपोर्शन को, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, अक्रॉस 2 इंडिपेंडेंट मशीन्स। So this was about the 4th question. Now on the 5th question, we have to write a short note on any of the following. So we have taken type 1 and type 2 error. Hypothesis testing में errors occur because decisions are based on samples, not entire population. So type 1 एरर आपकी अल्फा एरर्स होती हैं जब आप रिजेक्ट करते हो ट्रू नल हाइपोथेसिस को, ऑल्सो नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। एग्जाम्पल है इसका, कंक्लूडिंग अ न्यू ड्रग वर्क्स व्हेन इट एक्चुअली डज नॉट। सो यहाँ पे आप जो नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, तो आपका टाइप 1 एरर होता है। टाइप 2 एरर दैट इज बीटा एरर, आपका फेलिंग टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, ऑल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। जब आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका टाइप 2 एरर होता है। कंक्लूडिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ नो इफेक्ट व्हेन इट एक्चुअली इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। सो रिलेशनशिप बिटवीन 2 एरर्स, क्योंकि अगर आपका टाइप 1 एरर कम होगा तो टाइप 2 एरर बढ़ेगा, वाइस वर्सा है। एंड पावर ऑफ टेस्ट दैट इज 1 माइनस बीटा। सिग्निफिकेंस क्या है? चूजिंग करेक्ट अल्फा लेवल बैलेंसेस द रिस्क बिटवीन बोथ एरर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग डिज़ाइन। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग डिज़ाइन में हम क्या करते हैं? एवरी nth एलिमेंट यूज़ करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट आफ्टर रैंडमली चूजिंग अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो यहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन करते हैं हम पॉपुलेशन साइज दैट इज़ n, फिर हम सैम्पल साइज डिसाइड करते हैं, फिर कैलकुलेट सैम्पलिंग इंटरवल दैट इज़ n डिवाइडेड बाई n, तो आपका kth टर्म आ जाएगा। फिर रैंडमली सेलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट बिटवीन k1 एंड k, फिर देन वी हैव टू सेलेक्ट एवरी kth एलिमेंट देयर आफ्टर। एडवांटेज क्या है? काफ़ी सिंपल और क्विक टू यूज़ है, इंश्योर करता है कवरेज ऑफ पॉपुलेशन, वर्क्स वेल फॉर लार्ज एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। डिसएडवांटेज यहाँ पे हो सकते हैं कि रिस्क ऑफ पीरियोडिसिटी, इफ़ द लिस्ट हैज़ पैटर्न मैचिंग के, सैम्पल बिकम्स बायस्ड एंड लेस रैंडम कंपेयर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एग्जाम्पल, selecting every 10th customer entering a supermarket after a random start. So this was about the last year question paper. Thank you so much.